Hello, everybody. How is everybody? Let me just unmute everyone and do all the admin stuff. And everybody can say hi. Hello. Hi Nandini. Nandini. Hello sir. Hi, Good Nandini, evening. everyone. Show me your fruit, everybody. Hi. Hi, Hello, Nandini. निशा जी, कैसे हैं Hi, आप? Nandini. बस ठीक है. You are looking so young. Unmute करनो ना. अब देख लो, Unmute असली करनो। एज पता चल जाएगी. Nandini, you are looking so young. अरे बाल तो No. सारे सफेद हैं. बट असली एज में और भी यंग लग रहे हो जी। किसने बोला? कल्याण सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रविंदर जी, हेलो, कैसे हैं? प्रभा जी, जी। हेलो, नीता, सब अनम्यूट करके एक बार हेलो बोल दो, उसके बाद हम मीटिंग शुरू करते हैं। वीडियो भी दिखा दो, whoever. Hi. Hi. Whoever has a gorgeous face, please show your video. If you don't show your video, that means you don't have a gorgeous face. Come on. Yeah, Laveen, the gorgeous one. Richa. Hi, Oh, I'm Shakun. Shakun. Galaxy. That can't be your name. Shall we start? Yeah, sure. Who's got cravings? Wait, somebody's saying can't be. So ask all to unmute. Anybody gets craving, or is it just me? Nah. We are all humans. Anybody addicted to any kind of food, or is it just me? Almost anything on I this think planet. everyone. I can make a list of 10 foods at least. Me too. So write all your questions, because we are going to have an amazing conversation today. And I'm so inspired by Kalyan. I recently attended a workshop of his, and I still don't know what happened. It's all unraveling inside, slowly. So I know many of you already know him, but for those who don't, I'm just going to bring him on Spotlight, and we're going to begin our conversation. So how it's going to go, I'm just going to, one second, spotlight myself as well if I can. Okay, add spotlight, there you go. And I'm going to now mute everybody, but please, if you have questions, you can either put it in the chat or you can just note them down, because first half of the meeting, I'm going to ask some questions that I know are very relevant for all of us. And then the second half of the meeting, people can ask questions, but I will moderate. So you can send me the question in the chat box and I'll pick the questions and I'll invite you to ask him directly and have a conversation. Does that sound good? Yeah, just to manage things a little bit, right? So we make the most of the time that we have with Kalyan. And is it okay if I speak in Hindi? Hindi में try करेंगे conversation? बिल्कुल. ठीक है, हिंदी में ट्राई करते हैं. मजा आता है हिंदी में बोलने में. हाँ. ओके, अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ. तो नमस्ते कल्याण जी, वेलकम. हाय नंदिनी, थैंक यू. आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे. और मैं ऐसी कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ कल्याण जी की, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इनको जानती तो बहुत टाइम से हूँ, पर मैं जुड़ी ईट फ्रूट्स एंड हील के माध्यम से. जब मैंने इनको देखा बात करते हुए, एक मेंटर है ये ईट फ्रूट्स एंड हील पे, जो कि बहुत सारे फ्रूटेरियंस का प्लेटफॉर्म है, इंक्लूडिंग गौरव जी हु स्टार्टेड इट. सो उसके बाद जब ये इन्होंने बताना शुरू किया अपने माइंड को देखने के लिए और वैसे एड्रेस करने के लिए क्रेविंग्स को, तो मुझे काफी अच्छा लगा इनका नजरिया. क्योंकि इससे पहले क्या है कि हम काफी गलत नजरिए से सोचते हैं. ऐसे सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हमें कंट्रोल नहीं है, या हम डिसिप्लिन नहीं है. पर ऐसी बात नहीं है ये, क्योंकि हम सबको ऐसी दिक्कतें आती हैं अपनी जर्नी में, जब हम हेल्थ पाथ की तरफ जाना चाहते हैं और हमारा मन हमें खींचता है,
पुरानी कंडीशनिंग की तरफ, पुरानी आदतों की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरे हैं या आप वीक हैं या आप परफेक्ट नहीं हैं। एक्चुअली कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में पूछा कि किस किस को क्रेविंग्स आती हैं, तो सबने कहा कि हम सबको आती है। नहीं आती तो इस प्रोग्राम में क्यों आते इतने सारे लोग, 30 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय फूड एडिक्शंस पे। तो अब शुरुआत करते हैं। तो मैंने जब इनको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इनकी एक 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड की, जो कि बहुत ही मेरे लिए प्रभावशाली थी। मुझे उससे काफी इम्पैक्ट हुआ है और अभी भी बस वो एक शुरुआत थी, वो खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है कि वो एक शुरुआत थी, एक अलग नजरिए से देखने को अपनी जिंदगी को, सिर्फ फूड एडिक्शंस और क्रेविंग्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें अलग नजरिए से देखने को। मुझे उसको करने के बाद काफी रिलीफ महसूस हो रहा है, काफी शांति महसूस हो रही है अपने माइंड में। ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब जो एफर्ट हम करते हैं हर समय, अपने आप से परेशान रहते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही नेचुरल इनका स्टाइल है और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू एंड लेट्स स्टार्ट विद, ये फूड एडिक्शन है क्या? ऐसी कोई चीज भी होती है? क्योंकि हमने तो अल्कोहल की एडिक्शन के बारे में सुना है, या सिगरेट की एडिक्शन, या ड्रग्स की एडिक्शन। तो ये फूड की एडिक्शन ऐसी कोई चीज है भी, और अगर है तो क्या है, बताइए। बेसिकली एडिक्शन का एक फ्रेमवर्क होता है हमारे मन में। एक एडिक्शन जो है वो किस चीज का एडिक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एडिक्शन एक फ्रेमवर्क पे चलता है। मतलब आप अल्कोहल के एडिक्टेड हो, या सिगरेट के एडिक्टेड हो, या आप किताब के एडिक्टेड हो। मतलब समझा ये जाता है कि किताब का एडिक्शन इज अ गुड एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन इज अ बैड एडिक्शन। बट एंड ऑफ द डे जो मेंटल फ्रेमवर्क काम करता है वो एक तरह से ही करता है, और वो आपकी ऊर्जा से चलती है, और वो एक अंतहीन एक भंवर पैदा करती है मन के अंदर, जो आपका ऊर्जा की खपत चलाते रहती है। वो चाहे कुछ भी एडिक्शन हो, आपका ऊर्जा की खपत जारी रहती है अगर आप एडिक्टेड तो फूड एडिक्शन भी एडिक्शन ही है और सेम फ्रेमवर्क से चलती है। मन के अंदर एक भंवर से ऊर्जा की खपत होती रहती है। तो आप ये कह रहे हैं कि एडिक्शन जो भी हो, एडिक्शन एडिक्शन है, और जो उसका काम करने का तरीका है, जिसे आप फ्रेमवर्क कह रहे हैं, उससे हमारी ऊर्जा की खपत होती नष्ट होती है। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे भंवर में फंसे हैं तो वो कोई हमारे लिए लाभदायक तो है नहीं, तो नष्ट ही कर रही है हमारी ऊर्जा को। तो जब आपने कहा कि एक फ्रेमवर्क है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। फ्रेमवर्क, क्योंकि उसका क्या, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? हाँ, मतलब फ्रेमवर्क मतलब एक पैटर्न है। तो किस लिए इसको भंवर कहा जाता है, इसको अगर समझे हम, हमारे एक्चुअली ऊर्जा का जो चलन है हमारे अंदर, वो एक प्राकृतिक एक क्रम के हिसाब से चलती है। ये कोई भी अगर हमारा सेंसरी इंटरेक्शन होता है, सेंसरी इंटरेक्शन मतलब हमारे इंद्रिय का अगर बाहरी दुनिया से कोई भी एक इंटरेक्शन का हिंदी क्या होगा? हाँ, मतलब जैसे कि हम अगर कुछ देखते हैं, सुनते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, खाते सुनते हैं, हैं, कुछ फील यस, करते हैं, 5 स्मेल इंद्रियां करते जो। हैं, राइट, हाँ। स्मेल करते हैं या खाते हैं या स्पर्श करते हैं। हम्म। तो वहां से हमारे अंदर एक केमिकल कुछ परिवर्तन होती है, जिससे हमें पता चलता है जे वो जो बाहरी दुनिया से जो कांटेक्ट हमारा हुआ है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें रोकना है। अगर हमें अच्छा महसूस होता है,
वो जो केमिकल परिवर्तन अगर हमें अच्छा महसूस कराती है, उसको संवेदना कह सकते हैं मेरे ख्याल से। संवेदना, यस, हाँ। संवेदना कह सकते हैं उसको, इंग्लिश में सेंसेशन कहते हैं। हम्म। तो वो सेंसेशन हमें ये इंडिकेट करती है जो वो जो बाहरी दुनिया से जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम जारी रखें या हम उसको बंद करें। जैसे कि अगर कभी कोई अच्छा सड़ा हुआ फ्रूट खा लिया तो वो अच्छी नहीं है उसकी। अच्छी नहीं लगता है तो हमें वो नहीं अच्छा लगने के कारण हम उसको खाएंगे नहीं। और तो अगर वो अच्छी लग जाती है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ये पानी जो ठंडा है नहाने के लिए तो वो अच्छा नहीं लगता, इस टाइप एकदम का है ना। एकदम एकदम और अगर वार्म है तो ऐसा लगता है बस खड़े रहो, गरम गरम यस एहसास लेते यस रहो, या अच्छा कुछ खाना है तो एग्जैक्ट। खाते रहो। तो ये जो अपना जो सेंसेशन या संवेदना जो है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। ये पूरे जो फ्रेमवर्क जो चलती है, एक तो मान लीजिए बाहरी दुनिया से जो कांटेक्ट हुआ, उसके बाद जो अंदरूनी जो संवेदना हुआ, फिर उसका एक समझ आया। ये तीन एक क्रम में चलती है। कांटेक्ट हुआ मतलब इन इंग्लिश वी कैन एक्चुअली टर्म दिस वे, सेंस टू सेंसेशन टू परसेप्शन। सेंस आया, उससे सेंसेशन आया, उससे परसेप्शन गया। परसेप्शन मतलब एक समझ आया, अवेयरनेस हमें वहां से मिलती है, अवेयरनेस की जनरेशन उसी से होती है। तो क्या है, ये जो बाहर से जो एंट्री हो रही है वो एंट्री का खात्मा है। Try and understand this thing. This thing is very important to understand the framework of addiction. जो बाहर से हमें जो वो फल खाना स्टार्ट किए, या हम किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं, जो ठंडे पानी को स्पर्श कर रहे हैं, वो जो स्पर्श करने का पहलू जो है उसका एक एंड है, उसका एक एंड है, क्योंकि वो फिजिकल एक एस्पेक्ट है, उसका एक एंड है। तो उसका जो इम्पैक्ट देने वाला जो संवेदना है उसका भी एक एंड है, उसका भी एक खात्मा है। So the sensory reception has an end. That is why the impact of the sensory reception as sensation also will have an end. तो ये जो खात्मा हो रही है, इसमें हमारा जो ऊर्जा का जो खपत है वो वहां पर खत्म हो जाती है, ऊर्जा का खपत जारी नहीं रहती है। अभी होता क्या है, अगर हम काल्पनिक कुछ एक चित्र बना देते हैं दिमाग के अंदर, जो एक्चुअली सेंसरी तरफ से नहीं आ रही है, बट मन के अंदर एक चित्रीकरण हो गई है, एक इमेज क्रिएशन हो गया, जो हमें फलाना एक्सपीरियंस अच्छा होना है या फलाना एक्सपीरियंस खराब होगा। तो एडिक्शन के समय में क्या होता है, हम पहले से दिमाग के अंदर एक इमेज बनाते हैं जो वो चीज का स्वाद बहुत अच्छा है। उसका मतलब कारण होता है जो पास्ट में कभी खाया हुआ है या किसी ने बताया, उसको विश्वास कर बैठे हैं जी इसका तो बहुत अच्छा स्वाद होगा। ऐसा भी कुछ, मतलब एक्चुअली हमने स्वाद चखा नहीं, बट उसको हमने अंदर एक सेंसेशन आने दिया जो वो सच में अच्छा है। बिना चखे अच्छा सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब तो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि वो केक कितना अच्छा होगा, या वो पकोड़ा या समोसा कितना अच्छा होगा, अपने मन या में ही हम पका पका के उसको टेस्ट ले लेके खाते रहते हैं। यस, एडिक्शन वही है जो खाने से पहले मुझे एक लालच का तैयारी हो गया अंदर, मैं मान बैठा जो वो अच्छा है, वही सेंसेशन है, वही संवेदना है। अभी इसको समझने की कोशिश कीजिए फिजिक्स इसका, जो इसका जो सोर्स है वो सोर्स है इमेजिनेशन। ये जो सेंसेशन है इसका सोर्स है इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन का कोई खात्मा नहीं है, देयर इज नो एंड ऑफ एन इमेजिनेशन। तो फिर द सेंसेशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द इमेजिनेशन विल आल्सो नॉट हैव एन एंड। तो ऊर्जा की खपत वहां हो रही है जो हम वहां हो रही है, ख्याल लाते हैं, क्योंकि जहां पर सेंसेशन काल्पनिक बेस में तैयार है, मतलब काल्पनिक कारण के वजह से आपके अंदर सेंसेशन आ रहा, सेंसरी कारण से नहीं है। वो तो है, क्योंकि हम खाते तो 2 मिनट के लिए हैं,
पर हम सोचते उसके बारे में सारा समय रहते हैं। और जैसे कि प्रिपेयर अभी करते हैं, बहुत सारा तामझाम करते हैं। जैसे कि अभी हमने ये बात। फ्रूट्स किए, तो उसके बाद हम कुछ लोग एक कुक मील या एक सेवरी मील पे शाम को आ गए। अब होता ऐसा है कि शुरुआत तो हम फ्रूट से करते हैं, पर सारा समय हमारा दिमाग चल रहा है कि हम वो सेवरी या वो कुक कब खाएंगे। और मेरे ख्याल से हम मतलब 7-8 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, और फिर खाने में हम कुछ समय नहीं लगाते, खाते समय सोचते भी नहीं है। शायद हाँ, ये 5 मिनट में खाना खाया जाए। गुरविंदर जी लिख रही है चैट में, मुंह में पानी आ जाता है। ये मुंह हाँ। में पानी आ जाना मतलब बिना खाए मुंह में पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में उसका पहले से एक कंफर्मेशन हो गया जो ये स्वादिष्ट है, तभी जाके मुंह में पानी आया। तो ये जो मुंह में पानी आया ये सेंसेशन है, पर किस वजह से आया? कल्पना के वजह से आया। और कल्पना एंडलेस है, उसका कोई खात्मा नहीं है। फिर ये जो सेंसेशन है, इसीलिए हम इसमें जकड़े रहते हैं, एडिक्टेड है, वहां से आजादी जैसे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम मतलब जैसे कि कहते हैं कि सिगरेट में निकोटीन होता है और वो एडिक्टिव होता है, या अल्कोहल जो है एडिक्टिव होता है। मतलब एक बार वो अंदर चला जाए, वो ऐसा करता है कि आपको और खाना ही पड़ता है। तो खाने में तो ऐसा कुछ पदार्थ नहीं है जो कि नशे वाला है, तो हम खाने से क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है, सोच है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम अगर ये 5 इंद्रियों को समझे, 5 इंद्रिय क्या है? आंखें हैं, फिर कान है, फिर नाक है, फिर जीभ है, और फिर त्वचा है। तो ये जो जिस ऑर्डर से कहा गया, हम उस ऑर्डर से क्या क्या रिसीव करते हैं बाहर से? लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये 5 चीजें हम रिसीव करते हैं। तो इसमें से ना हम अगर देखें, स्पीड सबसे ज्यादा है लाइट की, स्पीड सबसे ज्यादा है लाइट की, और स्पीड सबसे कम है टच की। लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। लाइट, उससे थोड़ा सा कम है स्पीड साउंड की, उससे थोड़ा सा कम है स्मेल की, उससे कम है टेस्ट की, उससे कम है टच की। तो जिसका भी स्पीड ज्यादा है उसका इम्पैक्ट उतना कम होता है। आप ऐसा समझने की कोशिश कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरी, 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गुजरी, या 5000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गुजरी, तो 50 किलोमीटर में आपके आंखों में रुकेगी थोड़ी देर, 5000 किलोमीटर में आपको पता ही नहीं चलेगा सामने से ट्रेन गुजर गई। यानी कि इम्पैक्ट उतना कम होता है जितना स्पीड ज्यादा होता है। तो इस क्रम में अगर हम समझे तो टेस्ट और टच की जो स्पीड है सबसे कम है, और उस वजह से उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा जो मन में जो एडिक्शन का जो प्रभाव है वो टच और टेस्ट के द्वारा जो होता है वो सबसे अधिकतर होता है। तो टच के थ्रू परवर्जन ऑफ सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग एक एस्पेक्ट है, जिसमें अभी मतलब कभी हम लोग उस पर भी बात कर सकते हैं। अभी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही उससे जकड़ा हुआ है, उस एडिक्शन में, पॉर्न एडिक्शन कह लीजिए या सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग का परवर्जन के एडिक्शन है, क्योंकि वो टच से ताल्लुक रखता है। और अगला जो है वो है टेस्ट। टेस्ट का जो एडिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल इस वजह से है क्योंकि उसका स्पीड बहुत कम है और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये एक कारण है। ऐसा क्यों है कि हम मतलब हमें अगर कोई कहे कि अब आज के बाद आप अंगूर मत खाना तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई कहे आज के बाद दूध नहीं लेना या नमक नहीं खाना या कुछ फ्राइड फूड नहीं खाना, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा क्यों है कि हम कुछ खाने के प्रति ज्यादा जकड़ा हुआ पाते हैं अपने आप को,
और हेल्थी फूड के प्रति हम नहीं जकड़ा हुआ पाते? ऐसा क्यों है कि हमें एडिक्शन सिर्फ उसी की होती है जो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए? प्रकृति में एक्चुअली नशा नहीं है। नशा जो है, एडिक्शन जो है, वो प्राकृतिक है नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। तो जो प्राकृतिक भोजन है उसमें नशा हो ही नहीं सकता है। नशा सिर्फ काल्पनिक तरीके से हो सकता है। अगर किस तरह से, आप अंगूर का नशा भी आपको हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? अगर आप ऐसा मानने लगे हो जो अंगूर मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा अगर किसी भी तरह आपके दिमाग में चला गया है और आप उसको विश्वास करने लगे हो, और अंगूर के स्वाद से परे भी ये कल्पना ज्यादा काम कर रही है जो वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तो फिर वो उसका नशा भी आपको हो सकता है। तो कल्पना के वजह से नशा होता है। और ये सच्चे वाले जो स्वाद है, जो अंगूर है, और आपके मन में कोई अलग तरीके का विश्वास लेके आप नहीं चल रहे हो, तो अंगूर का नशा आपको नहीं हो सकता है, आम का नशा नहीं हो सकता है। और होने का एक्चुअल कोई स्कोप भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका अंगूर का नशा हो गया है तो गर्मी में क्या करोगे आप? गर्मी में आपको अंगूर मिलने वाली नहीं है। अगर आम का नशा हो गया तो अभी आप सर्दी में क्या करोगे? आम कहाँ मिलेगी आपको? तो प्रकृति में नशा का कोई प्रावधान है नहीं। तो फिर हमें नशा क्यों काल्पनिक नशा है। हो जाता है खाने का? क्योंकि खाना भी तो प्राकृतिक है, जो सब्जी है, जो रोटी है, चावल है, वो भी तो प्राकृतिक है। तो उसका नशा क्यों होता है? सारा समय उसके विचार क्यों आते हैं? हमारे लिए आसान क्यों नहीं है कहना कि हाँ ये नहीं खाएंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम ये खाएंगे? ये जो प्राकृतिक है हम कह रहे हैं, यहीं पर हम झूठ झूठ कह बैठ रहे हैं। क्योंकि क्योंकि अगर प्रकृति में देखा जाए तो प्रकृति में हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक प्राणी वही चीज खाती है जो उसको बिना बदले हुए ग्रहण योग्य होता है। So without any modification, if the substance is palatable, then it becomes a food for that organism. इतना तो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ आता है, बट इसका गहराई को समझना भी बहुत जरूरी है। इसका गहराई क्या है ना? वो चीज जो हमें पैलेटेबल लग रहा है, ग्रहण योग्य लग रहा है, उसका कारण क्या है? किसी भी प्राणी के लिए कोई भी पदार्थ अगर ग्रहण योग्य लग रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो तत्व है, वो तत्व मेरे शरीर के लिए जरूरी है। यानी कि that particular substance contains nutrition for that particular organism. तो कोई अगर प्राकृतिक स्वाद हमें अच्छा लगता है, यानी कि उसके अंदर मेरे शरीर की जरूरत वाली चीज है। ये बड़ा नॉन सीरियस एस्पेक्ट नहीं है, कैजुअल एस्पेक्ट नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। खाना जो है ये एंटरटेनमेंट नहीं है। खाना एक भोजन ग्रहण करना ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि इस पे लाइफ टिकी हुई है। लाइफ का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो आपका इससे साधित होती है, इससे सब्सटैंशिएट होती है। तो अगर हम उस स्वाद को बदल देते हैं तो वो बदलने का कारण क्या है? वो ग्रहण योग्य नहीं था, तभी मुझे बदलने की जरूरत पड़ी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम अगर रोटी भी बना रहे हैं या सब्जी भी बना रहे हैं, उसमें नमक छिड़क रहे हैं, नमक छिड़क के स्वाद तैयार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो असली स्वाद है वो हमारे शरीर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, और उस वजह से हमें ये स्वाद का सृष्टि करना पड़ रहा है, स्वाद का परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ये जो परिवर्तित स्वाद है, ये हमारा प्राकृतिक खाना कैसे हो सकता है? ये तो काल्पनिक खाना हो गया ना फिर, पर क्योंकि इसके पीछे कल्पना काम कर रही है। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि हम अपने खाने को ग्रो कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ह्यूमन रेस आगे बढ़ी। अगर हम ढूंढते रहते हमारे फल कब सीजन में आएंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ती। ये भी कई लोगों का मानना है कि
जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इवॉल्व किए हैं ये खाने के लिए, और क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई करना सीखा, अपना उगाना सीखा, तो वो सर्दी में भी सरवाइव कर पाए क्योंकि वो ग्रेन्स खा सकते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप कह रहे हैं क्या हमें बाकी सब प्राणियों की तरह ही खाना चाहिए, जैसे वो बिना पकाए बिना चेंज किए जैसे होता है आहार वैसे ही खाते हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स कुछ अलग नहीं है क्या? नहीं, मतलब हम क्या कह रहे हैं, मतलब नंदिनी या कल्याण क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी ये कह रहे हैं जो हम इवॉल्व हुए हैं, उनको खुद को भी स्वाद परिवर्तन करके खाना पड़ रहा है। यानी कि इवॉल्व होने का जो क्लेम है वो झूठा है। हम लोग बायोलॉजिकली इवॉल्व हुए ही नहीं है। अगर इवॉल्व हो जाते हो, ये फिलहाल के लिए ये मानने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जो किसी ऐसा हालात हुआ होगा जिसके वजह से हम लोग ग्रेन खाना स्टार्ट किए, मांस खाना स्टार्ट किए, ये सब हुआ होगा, परिस्थितियां हुए होंगे जहां पर स्केर्सिटी ऑफ फूड ये सब फैक्टर रहे होंगे। पर बावजूद उसके हमारा जो बायोलॉजी है ये परिवर्तन नहीं हुआ है। बायोलॉजी वहीं पर टिका हुआ है। अभी भी हम मांस कच्चा नहीं खा सकते हैं, अभी भी हम ग्रेन को कच्चा नहीं खा सकते हैं। यानी कि जो इवोल्यूशन का जो क्लेम कर रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल तौर पे हुआ है, बायोलॉजिकली नहीं हुआ है। फिर ये इवोल्यूशन का जो तत्व है ये टिकता ही नहीं है, क्योंकि जो ये क्लेम कर रहा है उसी को परिवर्तन करके खाने का जरूरत पड़ रहा है। फिर कहाँ टिका ये बात? तो फिर हमारा प्राकृतिक आहार क्या है, और हमें ज्यादा क्रेविंग्स ये परिवर्तित आहार की ही क्यों होती है? क्योंकि अगर क्रेविंग्स में देखा जाए, एडिक्शंस में देखा जाए, तो शुगरी ब्रेड, रोटी, राइस, नमक का डला हुआ कुछ या तला हुआ कुछ, इसकी ज्यादा तलब होती है। जैसे एक डायबिटिक भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कुछ मिठाई या कुछ ले ही लेता है, और किसी को मालूम है कि मेरा वजन ज्यादा है या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो खा ही लेते हैं पकौड़े, छोले, कुलचे, जो भी उनको पसंद हो, जो भी उनकी क्रेविंग हो। तो ऐसा क्यों है कि मॉडिफाइड के प्रति ही हमारी आकर्षण ज्यादा है, हमारा मन ज्यादा अटकता है, ऐसा क्यों है? नहीं, जैसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे जो ये कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाने का कारण है उसको कंट्रोल करने की प्रचेष्टा। जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब इसका आधार ही कल्पना है, काल्पनिक आधारित नशा हम में है, और कल्पना टिकने लायक है नहीं। कल्पना टिकती है तभी जब वो हम कल्पना ना सोच के हम उसको सोचने लगते हैं जो सच्चाई है, तभी जाके काल्पनिक चीजें टिकती है। हमें किसी को, मैं यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, 50 से अधिक पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, इनको सभी को अगर पूछा जाए कि आपको असली चीज पसंद है या नकली चीज पसंद है, तो हर कोई कहेंगे जे असली चीज पसंद, नकली पसंद नहीं है हमें। फिर भी जो हमारे जिंदगी में जो नकली चीजें भरा पड़ा हुआ है वो सारे इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हम उसको नकली नहीं मान रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं जो असली है। तो ये कल्पना के वजह से ये टिका हुआ रह जाता है। और कंट्रोल करने की जो हमारा एक इच्छा है, ये इच्छा भी सेम फ्रेमवर्क में काम करती है, और उसको और भी ऊर्जा की ऊपर लोड ही बढ़ता है। उसका जो नेचुरल मूवमेंट है, नशे का नेचुरल मूवमेंट है खत्म हो जाना। उसको अगर ऐसे फ्रीली छोड़ दिया जाए तो अपने आप खत्म हो जाएगा। हम लोग शुरुआती दौर में क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के थ्रू उसे रोक लेते हैं। फिर जब बाद में पता चलता है ये हानिकारक है, तो फिर उस एप्रिसिएशन को रिप्लेस कर देते हैं हेट्रेड से। फिर वो हेट्रेड भी मन के तरफ से ऊर्जा की खपत करती रहती है, और वो ऊर्जाहीन होके रुका हुआ रह जाता है। वो जो हैबिट फॉर्मेशन हुआ है, वो जो नशा आई है।
तो ये कंट्रोल वाली एस्पेक्ट अलग है, वो मानसिक वजह से होता है और ऊर्जा की कमी की वजह से होता कि ऊर्जा की कमी क्यों, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों है, हमें ऊर्जा बचानी क्यों है, इस ऊर्जा का महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। है। ऊर्जा सीमित है सभी को, और ये समझने के लिए हमें कोई लैब या किसी और का कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको टायर्डनेस होती है, थकावट सबको होती है। थकावट होने का मतलब ये है जे हमारे अंदर जो मोमेंट टू मोमेंट ऊर्जा है वो लिमिटेड है। किसी को हो सकता है थोड़ी देर में थकावट आए, किसी को पहले थकावट आ जाए, पर थकावट सभी को आती है। कोई एंडलेसली काम नहीं कर सकता है, यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड कुछ चीज है तो वो तो कंजर्व्ड होना ही चाहिए ना। अगर वो कंजर्व्ड नहीं होती है तो फिर तो उसका खपत हमें ऊर्जा की कमी महसूस कराते रहेगी। और ऊर्जा को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, उससे हमें क्या? नहीं, ऊर्जा को बचाने की महत्वपूर्ण बात जो है ना, ये इसमें एक एफर्ट लेके आ जाती है। जैसे एज इफ हमें ऊर्जा बचाना है, हमारी मजबूरी है ऊर्जा बचाने की। हमारा ये जो सृष्टि जो चल रही है, ये सृष्टि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वजह से ही टिका हुआ है। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता इसके कैरेक्टरिस्टिक में, इसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये सृष्टि टिकती ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है। हाँ, इसके लिए कुछ एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। एफर्ट लगाने से वो ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, बिना मतलब एफर्ट के खपत हो रही है उसको देखना है। यस, तो अपने आप ही हाँ, क्योंकि खपत जो हो रही है उसका कारण है कल्पना, फिर कल्पना हमें दिख जाएगी, इमेजिनेशन हमें दिख जाएगी, और इमेजिनेशन दिख जाने के बाद वो टिकती नहीं है। फिर वहां से जो खपत हो रही थी वो खत्म हो जाती है। फिर जो नेचुरल मूवमेंट है वो और भी इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम सबने अनुभव किया है कि हम जब प्राकृतिक भोजन खाते हैं, जैसे कि फल खाते हैं या कुछ भी हल्का फुल्का खाते हैं, स्पेशली फल, तो शरीर को बहुत ही आराम और अच्छा लगता है। किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो वो बेटर हो जाती है, जैसे मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दर्द वगैरह, इन्फ्लेमेशन है, वो काम डाउन हो जाता है। किसी को कुछ और दिक्कत आ रही है वो कम हो जाती है। हम सब ने अनुभव किया है, जो भी यहाँ पे जिन भी लोगों ने थोड़ा हेल्थी खाया होगा या फ्रूट फीस्टिंग किया होगा या जो भी। परंतु इसके बावजूद मन क्यों खींचता है वो सब चीजें खाने के लिए, जिससे कि हमारा पेट खराब हो रहा है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, जिससे कि हमारा इन्फ्लेमेशन और पेन बढ़ रहा है। तो ये शरीर और मन में आपस में कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ संकट है, क्या है? क्योंकि शरीर में बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, शरीर कहता है कि फल खाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर मन कहता है कि ये क्या है, मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ इस पे बताइए कैसे? इसका ना एक बेसिक नासमझी जो हमारा चलता है, मतलब इंसानी नासमझी कहा जा सकता है इसको। जो ये जो अच्छा लगने वाला जो कार्यक्रम है, जे कुछ कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे आम हमें अच्छी लगती है, एक पत्थर का टुकड़ा अगर खाने की कोशिश करें तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो अच्छा लगना और बुरा लगने वाली जो सिलसिला है, ये सिलसिला हम इंसानों को दिख गया है। ये बाकी प्राणियों का क्या है, ये इंस्टिंक्टिवली इस अच्छा लगना बुरा लगने को लेके जिंदगी पार करते हैं बाकी प्राणी। पर इंसान को ना ये समझ में आ गया जी, यहाँ पर कुछ अच्छा लगना और बुरा लगने का काम चल रहा है हमारे अंदर। तो हमने क्या किया, जो अच्छा लगने वाला चीज है उसका ड्यूरेशन बढ़ाने का एक प्रयत्न करना स्टार्ट कर दिया, और बुरा लगने वाला चीज को दबाने का एक कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया।
इंग्लिश में कहा जाता है स्टिमुलेशन ऑफ प्लेजर और सप्रेशन ऑफ पेन। ये दो कार्यक्रम जो अब स्टार्ट किए हैं, इसके वजह से हम जकड़ गए हैं, क्योंकि प्लेजर और पेन जो है ये लाइफ का गोल नहीं है, लाइफ का ड्राइवर है, इंडिकेटर है। जो ऊर्जा की खपत होना या बचाव होना, संरक्षण होना, ये दर्शाती है प्लेजर या पेन। अगर हम प्लेजर फोकस्ड हो जाते हैं लाइफ में, फिर जाके क्या होता है, हम ऊर्जा का जो खपत होना है वो कोई उसका एंड नहीं होता है, क्योंकि जो हम स्टिमुलेट करेंगे, प्लेजर को जो बढ़ावा देंगे, वो बढ़ावा देंगे आइडिया से, काल्पनिक तरीके से एक गोल बनाएंगे। गोल बनाएंगे मतलब मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। जो आप मान लीजिए एक कोई सब्जी बना रहे हैं, तो जब भी आप सब्जी बनाएंगे, उसका एक फोटो पहले दिमाग में आएगा, आपका उसका आइडिया पहले आपके दिमाग में आएगा, उसके बाद आपका वो सब्जी बनेगा। उसमें जो आप रेसिपी दे रहे हो, जो भी आप कॉन्डिमेंट दे रहे हो, मसाले दे रहे हो, नमक दे रहे हो, इसका सारा एक रिसर्च तो चल ही आ रहा है। एक ट्रेडिशनली एक रिसर्च चलता है, हम लोग रेसिपी शेयर करते हैं एक दूसरे से, उससे पता चलता है कि अच्छा इतना क्वांटिटी का सब्जी है तो 1 चम्मच नमक चाहिए। तो ये 1 चम्मच नमक जो हम दे रहे हैं, उसके पहले हम तैयार कर बैठे हैं दिमाग के अंदर जिसका स्वाद कैसे होने वाला है। तो यानी कि ये सारा जो कार्यक्रम है, ये एक आइडिया द्वारा ड्राइव हो रहा है। और आइडिया वही पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, जो सेंसरी जो रिसेप्शन है, उसका एक खात्मा है, आइडिया का कोई खात्मा नहीं है। उस वजह से इससे बना हुआ जो सेंसेशन है, ये सेंसेशन सिर्फ वो खाने से आएगा ऐसा नहीं है, खाने से पहले भी आ रहा है, खाने के बाद भी उसका मेमोरी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फिर वो सेंसेशन का कार्यक्रम जारी है, और उस वजह से ऊर्जा की खपत भी जारी है। पता नहीं कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया शायद। मतलब ये है कि जो मुझे समझ आया कि अगर हमें कोई चीज प्लेजर देती है तो हम मतलब अच्छी लगती है। जैसे कुछ नॉन फूड एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे मैं अभी कंफर्टेबल हूं क्योंकि हीटर चल रहा है, ठीक है। अगर ये हीटर खराब हो जाए तो फिर मेरे को लगेगा अरे ये हीटर क्यों नहीं चल रहा है, ये खराब क्यों हो गया, इसको जल्दी से जल्दी करवाओ। और जब तक वो ठीक नहीं होगा और ठंड लगी रहेगी, मैं अपनी ऊर्जा की खपत करती रहूंगी। यही ये सही होगा? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल ला रहे हैं आप। ये जो आप एग्जांपल लाए, ये एक फिजिकल ड्रिवन एग्जांपल को आप पिकअप किए हैं। जब आपको शरीर में ठंड लग रही है, उसके वजह से आप एक प्रावधान किए हैं जो गर्माहट लाने की, वो अगर खराब हो जाती है तो आपको फिर से ठंड लगना स्टार्ट करेगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उस वजह से आपको पेन आएगा, डिस्कम्फर्ट आएगा। पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हीटर खराब हो गया, उस वजह से अगर आपका मन खराब होना स्टार्ट कर दे इसके साथ साथ, तो शरीर की जो डिस्कम्फर्ट है, इसके साथ साथ आपका दुखी होना भी अगर स्टार्ट हो जाए। हम तो करते ही है ना, हम कंप्लेन करते रहते हैं, अरे ये कंपनी खराब है, इसका हीटर हमने क्यों लिया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, शायद मुझे दूसरे वाले प्लग, मतलब वी कीप एनालाइजिंग। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर बार बार फोन करेंगे उस कंपनी को और अपने आप को भी परेशान करेंगे कि अभी तक क्यों नहीं आया, उसको भी स्ट्रेस करेंगे कि देखिए मैं ठंड में बैठी हुई हूँ और आप आ नहीं रहे हैं और आप इसको देख नहीं रहे हैं। वो कहेंगे कि जी अभी इंजीनियर कहीं गया हुआ है, हम उस पर चिल्लाएंगे। ये सब होता है, मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम ये ऐड ऑन इसको अगर जूम इन करें, जो आप बेशक उस कंपनी के इंजीनियर को फोन किया, कस्टमर केयर में फोन करके बताएं, पर आपके अंदर तड़प नहीं हो रही है। अगर ये ठीक नहीं होती है तो भी कोई नहीं है, मैं और कुछ मैनेज हो जाएगा, और किसी भी तरह मेरा ये ठंड कम करने का मैं मैनेज कर लूंगी, और जो हो ही जाता है आखिरकार। पर वो जो दुखी हो जाना, जे उसी हीटर को मुझे ठीक करना है क्योंकि मुझे तो उसने इंसल्ट कर दिया, बोला जो आज समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे ये जो बातें हैं ना, ये सारे के पीछे जो है इमेजिनेशंस है।
मैंने एक इमेज फॉर्म किया जो इंसल्ट नहीं हो सकता। ये कल्याण को इंसल्ट कैसे कर दिया, ना कैसे कह सकता है, कल्याण को तो ना नहीं कहा जा सकता है, ऐसा एक चित्रीकरण हो रखा है। तो ये जो काल्पनिक जो हम जीवन जी रहे हैं, जो असलियत वाला है, जो मुझे ठंड लगेगी, ठंड से निकलने के लिए और कोई प्रावधान मैं निकाल लूंगा, ये एक सच्चाई है। पर उस वजह से जो हीटर खराब होने के वजह से जो मैंने एक इंसल्ट का इंटरप्रिटेशन किया है, और मेरे अंदर से जो एक तड़प आ रही है जिन्हें मुझे उसी को ठीक कराना है, इसने मुझे धोखा दे दिया, ये खराब चीज बेच दिया, ये जो सारे स्टोरीज है, इसका जो आधार है, फाउंडेशन है, वो है कल्पना। और वो कल्पना से जो मुझे सेंसेशन आती है वो एंडलेस लूप बनाती है, उसका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो सेंसेशन आ रही है। अब इसको हम दोबारा अपने क्रेविंग्स और एडिक्शंस के रेल में अगर लेके जाएं, तो मतलब हम सबको मालूम है कि हमें अपना स्वास्थ्य थोड़ा इम्प्रूव करना है। किसी को ज्यादा वजन की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की, किसी को ये और एक जड़ है। हाँ, जो हमें ये मालूम है, मालूम होने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे बॉडी ऑलरेडी डिजाइंड है टू गेट टू इट्स ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। पर ये जो मालूम है, होने के वजह से जो एफर्ट करना हम स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, उसी से सारे और भी कहानी बिगड़ती है। तो मैं ये कह रही थी कि हम सब ने अनुभव भी किया है कि जब हम प्राकृतिक खाने पे रहते हैं, आहार पे रहते हैं, रॉ फूड पे रहते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं ज्यादातर, तो हम सबको फायदा हुआ। लेकिन अब हम में से काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं पुरानी जो ये फायदा हुआ जिस चीज को हम कहते हैं, उसका रेफरेंस क्या है? मतलब हमारा फायदा वजन किस कम चीज को हुआ, कहते हैं? या हमारी दर्द कम हुई, हमारा पेट बेटर हुआ, हमारा डायबिटीज लेवल कम हुआ, तो हमें अच्छा लगा। परंतु फिर भी ये सारे ही ना पहले से डिफाइंड किया हुआ प्रॉब्लम्स है, जिसको हम बेटर का नाम दे रहे हैं, बेटर और वर्स का नाम दे रहे हैं। उसका एक रेफरेंस पॉइंट है जो आइडिएटेड है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। डायबिटीज का कोई अस्तित्व नहीं है। डायबिटीज एक इंसानी स्टोरी है जो इंसान मान बैठा है। हाइपरटेंशन एक स्टोरी है जो इंसान को कहा है और इंसान ने मान लिया, जी अच्छा इसको हाइपरटेंशन कहा जा सकता है। तो ये सारे जो डिजीज का जो हवा बनाए हैं हम, ये काल्पनिक तरीके से बनाए हैं, और उसको एक प्रॉब्लम मानते हुए उससे अगर निजात मिलता है, सो कॉल्ड निजात मिलता है, जो डायबिटीज का लेवल घट गया, तो फिर हम सोल्यूशन कर लिए हैं करके खुश हो जाते हैं। तो हमें जो दुखी होने का जो आधार है और खुश होने का आधार है, ये दोनों ही इमेजिनेशन है। बॉडी अगर नेचुरली रह रहा है तो वो बेस्ट पोजीशन में रह रहा है, फिर भी मौत आएगी। और मौत को अगर हम पहले से नेगेटिव मान के बैठे हैं, तो फिर जितना भी फल खा लो आपको तो मौत आनी ही है, फिर नेगेटिव चीज आपको होनी ही है। ये भी समझना जरूरी है। तो बात ये नहीं है जो मेरी शरीर बेहतर होने लगा है इस वजह से फल खाऊं। बात वहां पर अटका हुआ है, जब फल छोड़ के कुछ खा के तो दिखाओ। खाते हैं ना हम सारा समय फल छोड़ के बहुत कुछ, बिना बदले आप बदल के जो खा रहे हो खुद को धोखा दे रहे हो। नहीं, बदल के तो खा रहे हैं और खुद को धोखा भी दे रहे हैं, और हम समझ भी रहे हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि रिचा ने लिखा, एंड रिचा इफ यू वांट टू कल्याण, आप रेज हैंड करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। उन्होंने लिखा, माइंड इज सो डिस्ट्रैक्टेड एंड डिस्टर्ब्ड, आई ओनली कीप विजुअलाइजिंग अबाउट फूड that usually I give up and see it's better to eat rather than be so disturbed mentally. Yeah, so actually at this point we must understand that whatever we are calling as a food is, yeah, Richa, you want to say something? Want to add? Unmute yourself, please. You have to unmute yourself. Yeah, I was not able to unmute. Yeah, hi sir. Yeah. Hi Nandini ma'am. Hello ma'am. Yeah, so usually what happened, I mean, we know that this is not good for us, and I mean, I can also see
diseases happening in the body. And then, I start my day, set my mind, listening to positive videos, attend the sessions, and try to be on fruit. But I don't know what is the relation. Is it scientific or is it something with me? As soon as the sun sets, something goes, weird in my mind. And I can't think of all the notes or all the affirmations which I have made. I'm perfectly on fruits and very happy till 6 p.m. But You, logician stored in your mind कि अब 6 बजे ही देखना तुझे कुछ हो you, जाएगा. we, That uh, signaling comes, that message come. I'm not able to, cross that barrier, or I don't know. I know this is not good for me. I know I'll not be able to meet my targets, or I'm impacting my health. मतलब अगर मैं सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक I am doing everything which I'm supposed to do, but अगर वो रात के 2-3 घंटे if I go haywire, and then you are not able to think, मतलब फिर जो भी सामने आता है, जो भी घर में पड़ा होता है, आप सब बस डालते जाते हो. Then so वो, and of course I know this is an addiction only. ये कोई normal इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है. But what is the wiring? What is the psychology? I'm not able to understand that. yeah, ma'am. So, though in between your audio was little broken, but yeah, I could get that point of yours. So, am I audible, guys? Yes, yes. Okay. So now here, can you just see yourself not controlling your craving for a while? You have a kind of wish to control your craving whenever you are experiencing. Are you able to see this in yourself? Now, suppose if you just don't endeavor to control your craving, and as it is, you are not appreciating your craving. Intellectually, you understood and you stopped appreciating your craving. Now, what happens here, that we replace our appreciation with hatred. That's the wish of controlling. Because of the hatred, we try and control our craving. Now, if we can just see our craving, the base of the craving is an imaginary taste. The base of the craving is an imaginary taste. Imaginary taste, आप समझ पा रहे हो क्या? What is this imaginary taste? It is not the actual taste towards you are attracted. You are actually attracted towards something which is an artificial taste, which is a human created taste, ideated taste. You're not able to unmute? Just now I'm able to. I understand, but that imaginary taste is also because of the real taste which you have tasted. Like if I love cheese, then I still remember the taste of cheese. No, that is why I'm able to imagine it. Yeah. So it's a past experience that you are referring to. But if you intellectually analyze that, then also you'll find that the past experience of the taste also was an imaginary taste. It was not unmodified something that you are referring to. It was also, which you have actually tasted, that was also out of modification. Yeah, like your imagination comes in your mind first. No. Try and understand this. The cheese that you are talking about, or the dishes that you are talking about, which you have tasted in the past, that was also a modified taste. It Yes. is not. It is not an unmodified taste. So anything modified. Why do we modify things? To morph. To morph actual thing. Yes.
Because it is not actual, that is why we need to modify it to make it actual. Right. Do you see this? Hmm. So that means something which is not actual, I have made it actual through some planning, Hmm. through some ideation. So that means I am attracted towards the idea actually. Hmm. That taste is not an actual taste, that's an ideated taste. Hmm. And I am attracted towards that idea. Yes. I am not attracted towards something which is actual. Hmm. Intellectually you can understand this by analyzing. Right? Yes. Now, the problem that we suffer is that wish to control. Whenever we try and put an effort to control, the things go haywire. Yes. Now, this doesn't propose that if you don't control, then you must eat. Hmm. Can we just leave it to the moment without a pinch of planning before? I don't know what is going to happen at that moment. Can I stay with that genuinely? Are you able to comprehend this? Hmm. Every morning, perhaps you plan that today I'll control my craving. Yes. Then you fail. Hmm. If you don't plan at all, that I'll see when it will come, I'll see what's going to happen. Sometime you will have that food eaten, but that doesn't mean that it is I have failed, kind of. You are not concluding that as a failure, because it's a process of observation that you are undergoing. The moment you will be able to see that imagination actually, intellectually we are understanding that this is an imaginary taste, but somewhere, because of the lack of energy, we are not able to get to that observation, get to that actual observation. The moment you are able to see that actual observation, that this is an imaginary taste, this is not a taste, that time it will drop, it will move by itself. Because of the lack of energy, we are not able to see it. Right. Makes So sense. let's see how it moves further. Yeah, sure. I will definitely try this. I mean, so far, it's almost 8 p.m. So I have somehow controlled it. Yeah, and I'm sure I'll carry sail through this day. But yes, every day, I mean, it is a fight, See, but I will observe the fight. basically, Richa, what we need to understand here, that even if we are controlling by just not eating, but internally I am actually struggling a lot, that is also not helping us, because Yes. it is the energy factor which matters. If I am depleted, even if I am not eating, then also I am not benefited out of the energy conservation. Yeah, some days are like you sail through it smoothly. Like Touchwood, today's it's a smooth day. I'm not fighting with myself. Casually, I'm taking it 1 hour at a time. But sometimes, like you're saying, there is a lot of internal struggle going on and fight going on. Even if you manage one that day, then next day you go because of that internal wastage of energy. Yeah, so it must come out of an effortlessness. If it is coming out of an effort, then actually we are not able to get anywhere. And That how must be do we? understood. I mean, Share how an do we example. strengthen that? Can I share an example which Yeah, will yeah, answer that Nandini, please. question? Yeah, Nandini, please. So I was just reminded of how I quit non-veg. Basically, I was a non-vegetarian till 2011. That's when I went vegan. And before that, 2 years before that, I had this calling in me to go vegetarian, because I was spiritually inclined, and at some level I understood that it was
not compassionate to trouble other living beings. However, I still had the urge to eat meat, to eat chicken, to eat prawns, to eat fish, and so on. So I came across this book by Thich Nhat Hanh called Savor. Okay. So when I read that, he speaks about something called mindful eating. So the way I understood mindful eating was like, as per the practice he said, but I would practice it as giving gratitude to the food. So I would think about, you know, how this food grew and how it was on trees, or how it was a plant, and how some farmer grew it. So I gave gratitude to the farmer, to the soil, to whoever watered it, to whoever harvested it, to whoever brought it to the market, to myself, you know, for getting it, to the cook or help in the house for chopping. You know, you get the idea. I would go through the journey of the food and I would give gratitude to it. And one day I noticed that I was doing this all the time, except when I was eating chicken or fish or any, you know, dead animal. And I was like, no, this is not right. I have to do it even then. And at that time I was like, how do I think about this? Because at some level, I didn't want to look at what had gone into putting that animal on my plate. Right. Yeah. So I started by simply saying, I know you gave up your life, and I'm so grateful to you for giving up your very body to feed me, to nourish me. So I started by doing that, just internally. Nobody knows this. It's just in my mind. And then after a few times of doing this, I just said to myself, this is such a con. How can you keep saying sorry to something and yet be the reason that they are killed? In that moment, it dropped. In that moment, I saw that what I was eating was a corpse, was a carcass, dead body, लाश थी वो, जिसको कि मैं तेल और नमक और मिर्ची और हल्दी और अदरक और लहसुन और टमाटर और प्याज, वो सब डाल के मैं उसको ड्रेसअप करके खा रही थी। उस समय उस चीज का पर्दा फाश हो गया। तो मेरे दिमाग में अभी आपको सुनते हुए एक ख्याल आया है कि क्यों ना मैं जब भी कुक्ड फूड कुछ लेती हूँ या किसी भी चीज का परिवर्तन करके खाती हूँ, तो क्यों ना मैं दोबारा ये माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करूं और ये देखूं कि ये जो प्रोसेस है ये कितना अननेचुरल है, कि किसी चीज को आप तोड़ो मरोड़ो, मशीन में डालो और उससे फिर शुगर के क्रिस्टल बनाओ या हल्दी को पहले सुखाओ, फिर whatever. One can imagine the process that has gone into eating whatever we are eating, and उसकी अवेयरनेस रखें कि ये अननेचुरल है। ये मेरी तरफ से जस्ट आई मीन आई एम गोइंग टू डू इट फॉर माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को ही सुझाव दे रही हूँ एक्चुअली, और किसी और को ये लगता है कि ये ट्राई करना चाहेंगे तो आप। मैं जस्ट इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो ये जो माइंडफुलनेस है, ये माइंडफुलनेस इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. If we are just applying it while eating, then it's not going to work. It must be actually relevant for every moment of our life. Then only it becomes relevant and it becomes effective end of the day. Actually हम कर ही नहीं पाएंगे खाना खाते हुए अगर ये हमारे जीवन का ऐसा नजरिया नहीं है। अगर हमें ये जो डीप ऑब्जर्वेशन वाली जो अगर हमारा जो नैक है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, एक्चुअली एक्सप्लोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको वो दब गया है कहीं ना कहीं। वो अगर जो सप्रेस्ड हुआ है उसको अगर उधेड़ दे थोड़ा, तो चीजों को गहराई से देखना स्टार्ट करेंगे। और अगर देखना स्टार्ट कर दे तो जैसे आप ये कह रहे हो, जो आपको दिख गया जो ये लाश है जो मसाला छिड़का हुआ है, तो उसी तरह दिखेगा जे ये तो गेहूं है जिसको हम धोखे से नमक लगा के रोटी बना रहे हैं या जो भी है बना के स्वाद को बदल के खा रहे हैं। एक्चुअली जो भी हम रेसिपी बनाते हैं, जो भी हम कुक करते हैं, अगर उसको देखा जाए तो कुछ भी आप इंडिविजुअली नहीं खा सकते, खाने लायक है नहीं, तभी हमें कुक करने की जरूरत पड़ रहा है।
जी जी ये फैक्ट है। ये अगर दिख जाए और वही हम खुद के जो बॉडी है इसको अगर आप जैसे कंपैशनेटली आप देख रहे हो, जो दूसरे प्राणी का हत्या करके उसको क्रुएल्टी के नजर से हम देख रहे हैं, तो हम अगर ये देखना स्टार्ट कर दे जो हम क्रुएल्टी कर रहे हैं हमारे शरीर का, क्योंकि उसको वो स्वाद पसंद है ही नहीं, सिर्फ मेरे मानसिक कारण से, काल्पनिक कारण से मैं उसको थोप रहा हूं, उसको थोप रही हूं मेरे बॉडी के लिए, बॉडी हम एक्चुअली अपनी सेंसेस को फूल कर रहे हैं ना। यस। जैसे कोई खरगोश होता है या कुत्ता होता है, हाथी होता है, शेर होता है, हमेशा सूंघ के और फिर वो उसको देख के खाता है। पर हम भी वही करते हैं, नाक को हम भी नहीं वही ट्रस्ट करते हैं कर रहे एक्चुअली। हैं। हाँ, लेकिन हम फूल कर रहे हैं। यस। क्योंकि हम अगर सूंघे और मतलब जैसे हल्दी को भी पकड़े, वो आप नहीं खा सकते हैं, या प्याज को ले लें आप नहीं खा सकते हैं, पर उसको मिर्च मसाला डाल के फ्राई करके हम एक्चुअली फूल कर रहे हैं ताकि हमारे नाक और जबान को पता ना चले कि हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसको ओरिजिनल स्टेट में खाना चाहें तो वो हमारे लिए इनएडिबल है। और इस वजह से हमारा जो पेरिनियल एक इंसेंसिटिविटी आया है इंसानी तौर पे, जब हम समझ ही नहीं रहे हैं, ये जो क्रुएल्टी, आप देखिएगा दूध जो पी रहे हैं उनको समझ ही नहीं है जो वो एक प्रोडक्ट ऑफ क्रुएल्टी है। क्यों नहीं समझ है? क्योंकि हम देखना ही बंद कर दिए, अपने सेंस को देखना ही बंद कर दिए हैं, इतना काल्पनिक जीवन जी रहे हैं जो कल्पना से ही हम चला रहे हैं हमारे लाइफ को। एक्चुअल जो सेंसरी रिसेप्शन है इस पे कोई सेंसिटिविटी और बची ही नहीं है। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जो ये जो इंसानी एक पहलू चल रहा है इंसेंसिटिविटी का, इसका कारण क्या है? इसका कारण ही है ये काल्पनिक जीवन जीने का। हम कल्पना वाले जीवन जीते जीते हम एक्चुअल जो सेंसेस है इसको नकारना स्टार्ट कर दिए। रिचा, आपका हो गया क्वेश्चन आंसर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पर्सन? ओके, लवलीन, आपके कुछ क्वेश्चन थे? Yeah, so पहले तो a lot of it got answered अभी ये last question में। तो from I just want to understand from myself. See, intellectually, yes, I understand everything you've said, and I've been on this journey with Nandini for such a long time. However, even while you're talking all this, I have something in my mind that I want to eat, right? Understand intellectually that, you know, this potato that's been formed into a tikki, you know, now it's still vegan. And I understand it's come from things. I can't just eat a potato like I can eat an apple. So that all understood. And now I'm understanding कि even वो control भी जो मैं कर रही हूँ, that मेरी energy deplete हो रही है. Correct? So I just have to take every moment that if I'm going into the kitchen, you know, my intention is to eat a fruit the whole day. So not even have that intention. Yes. So now the question is that if you are in a state of zero intention completely, then how do you operate? That's the question. And that operation, you will not die, right? Without any intention. No. Suppose you are leading a day without any intention. Will you die that day? You will end up doing the things. Yeah. Whatever you will do without intention, that's going to be your natural movement. But that's already, all this conditioning has already destroyed that naturalness that we supposed to have. Yeah. So see, the primary aspect, the biological aspect has not been changed over the last 1,000 years. Yes. This biological aspect has not been changed. Like from the day when human beings started operating because of the intention, being operated by the intentions. After that also there is no much biological mutation happened. So biologically you will operate as natural as possible.
So that is very much there as designed within you. So now whatever the conditioning that has undergone, that can never be overcome by another condition, by putting another condition. That must be understood, because that's going to be another burden top of it. So if we can just understand that no matter how much conditioning has gone into it, if the conditions have been dropped, I'll start operating biologically. I'll start operating as natural as possible. So that thing, if you can understand that, if you do not have any intention, do not have any choice, then how do you operate? And that operation is very natural operation of yours, the very natural movement of yours. Are you able to that will comprehend? come with awareness in every moment. Yes, the awareness is actually absence of choice. Right. With choice, awareness cannot come, because we are always mesmerized with our choices. Yes. And because of that confinement of the choices, we cannot see the things as it is. If we can understand the aspect of choicelessness, then perhaps we can see the things as it is. Right. But there's so many choices. Yes, That's the- yes, yes. So this is not, food addiction is not about just the food. That's what we started with, understanding the addiction at the core. Addiction is just addiction. It could be addiction of your book reading. You know, that also will deplete the same way as it will be depleted through addiction of alcohol. Right. So yeah. Anything So else? I had this question which Sonal has already put: how to become effortless, like how to become that choiceless. Yeah, so first of all, effortlessness is not an aspect of becoming. It is a state Right. of being. It's a state of being. The moment we bring an aspect of becoming effortless, we It's- are bringing an effort. Can you see that? Yes. So it's a state of being. So if we understand that the choices are nothing but imaginations, the moment we actually understand this, the choices will drop. Because imaginations will not stay if it is identified as imaginations. Imaginations stay because we are confused with the understanding or considering imagination as truth. Got it. So the moment we identify our imaginations, it drops. Right. एक बार हिंदी में समझाएंगे ये choicelessness is awareness, because I think ये बहुत important point है. तो कोई हाँ, अगर जो अभी जो कैसे हम effortless हो सकते हैं, सहज कैसे हम हो सकते हैं, ये एक्चुअली हमें जो समझना है, जो हम एक्चुअली सहज हैं, हमें होने की जरूरत नहीं है. ये हमारा एक सहज स्थिति है, प्राकृतिक अवस्था है जो सहज है ऑलरेडी. तो हम फिर से कोई मुशक्कत करके सहज होने की बात अगर कर रहे हैं खुद से, तो फिर सहज होने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ला रहे हैं. कोशिश और सहजता दोनों एक साथ हो नहीं सकती है. और ये सहज होना इतना ही आसान है, सिर्फ झूठ चीजें दिख जाए. हमारा जो झूठ ड्रिवन जो जिंदगी है, ये अगर इसका झूठपन दिख जाए तो फिर वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि झूठ तब तक टिकता है जब तक वो नहीं दिखता है. झूठ टिका हुआ है इस वजह से क्योंकि हम उसको सच मान के बैठे हुए हैं. तो सिर्फ ये देखना है, खुद को देखना है, कुछ बिना कोशिश के देखना है. जैसे ही हम कोशिश लाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो शुरुआती दौर पे जो ऊर्जा लगना है, वो ऊर्जा हमें है नहीं. हम वो कोशिश में लगा चुके हैं उस ऊर्जा.
Are you done? Lovely. Thank you. Madhavi, you can unmute yourself. Yes. Am I audible? Yes, yes, Yeah. yes. Yeah, sir. Hi. Hello, Hi, ma'am. hi. Hello, sir. मुझे ये पूछना है कि फ्रूट खाने से तृप्ति नहीं आती। तृप्ति नहीं आती है? नहीं आती, मतलब कितना भी खा लो उसके बाद कुछ और जा सकता है, ऐसी फीलिंग आती है। It's हाँ। never enough. Never enough. एक्चुअली जो ये तृप्ति का परिभाषा है, इसको भी समझना है। एक अगर तृप्ति का हम एक इमेज बना के चल रहे हैं, जे तृप्ति का मतलब ये है, तो वो तृप्ति कभी भी आ नहीं सकती है। सैटिस्फैक्शन एंड सैटिस्फैक्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब सुन पा रही हो? जी सर। सेशिएशन जो है वो एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो आपको भूख लगा है, आप खाना स्टार्ट किए अपना फ्रूट, और भूख खत्म हो गया और खाना खा नहीं पा रहे हो, और फ्रूट आप खा नहीं पा रहे हो, इसको सेशिएशन कहा जाता है, बायोलॉजिकल सेशिएशन। और जो ये तृप्ति नामक चीज है, जो हम एक्चुअली हिंदी में शायद सेशिएशन एंड सेटिस्फैक्शन दोनों का ही तृप्ति ट्रांसलेशन होगा, बट ये जो सेटिस्फैक्शन है वो एक साइकोलॉजिकल गोल है जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं खाने के जरिए से। वो कभी भी हो ही नहीं सकता है। कुछ भी आप एक गोल बना के रखो दिमाग के अंदर, वो कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकता। तो जो हो नहीं पा रहा है वो साइकोलॉजिकल है। बायोलॉजिकली तो आप सेशिएटेड हो। इसको देख पा रहे हो क्या? I don't know. मतलब अगर कुक्ड खाना खाते हैं तो एक लिमिट आ जाती है कि अब 4 इडली खाई, 5वां नहीं जाएगा, वो तृप्ति is what I'm understanding. I'm trying to tell you how I feel when I'm eating any cooked meal. But वो feeling fruit खाने के बाद नहीं आती है। नहीं, एक्चुअली बायोलॉजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें जो व्हाट इज सेशिएशन, इसका मतलब ये है जो बायोलॉजिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। जो बायोलॉजिकली सेशिएशन का मतलब ये है जो आपको और खाना नहीं चाहिए, आपका जो रिक्वायरमेंट है उस वक्त का वो आपको मिल चुका है, ये है सेशिएशन। यानी कि आपका शरीर बोल रही है अभी के लिए बस, अभी के लिए बस, ये है बायोलॉजिकल सेशिएशन। और जो साइकोलॉजिकल सेशिएशन है वो है पहले से एक तैयार किया हुआ स्वाद का ग्रहण करने की इच्छा। ये इच्छा द्वारा चलती है। ये जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का जो एक गोल है वो एक डिजायर से चलती है, वो एक डिजायर से चलती है। और वो डिजायर का कभी भी परितृप्ति होना संभव नहीं है। कभी लगेगा, कभी आपको एक भ्रम होगा जो आप तृप्त हुए हो, पर वो अतृप्ति चलता ही रहेगा, क्योंकि वो इमेजिनरी ड्रिवन है, उसका कोई एक्चुअल एस्पेक्ट नहीं है। तो बायोलॉजिकल सेशिएशन जब हम समझे, वो क्या है, शरीर का जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गया है, उसीलिए शरीर बोल रहा है जो और नहीं चाहिए। अभी हम जो थोप रहे हैं, इडली जो थोप रहे हैं, वो जो इडली का जो इंग्रेडिएंट है वो शरीर ले ही नहीं पाएगी, उस शरीर का रिक्वायरमेंट वो है ही नहीं। हमने तो उसको बदल के एक दिमाग लगा के उसका एक टेस्ट बना के फिर थोप रहे हैं खुद के ऊपर, जो साइकोलॉजिकली ड्रिवन है। ये पूरा फिनोमेना जो है ना, ये साइकोलॉजिकली ड्रिवन चल रहा है। इसका कोई बायोलॉजिकल रियलिटी है ही नहीं, बायोलॉजिकल ट्रुथ कुछ है ही नहीं। So theoretically I do understand, but what do I do in that situation? मैं खा रही हूँ, एक पूरा 6 बनानास की स्मूदी भी पी ली है,
और फिर भी लगता है, मन जा रहा है कि कुछ और खा लूं, what do I do, और what do I tell my mind, how do I, मतलब उस सिचुएशन में मैं करूं क्या? Can you look at this aspect without any sensation? Without any sensation मतलब कोई जजमेंट नहीं है खुद के प्रति, जे माधवी तू क्या कर रही है, ये धिक्कार है तुझ पे। ये जो सटलिटी में हमारे खुद के प्रति आता है ना, जिसके वजह से गिल्ट आती है। और इसका और एक पहलू होता है जे यार इतने लोग तो खा रहे हैं, मैं भी खा लिया तो क्या बड़ी बात है, एक जस्टिफिकेशन का टोन। ये दोनों सेंसेशन के अलावा क्या मैं रह सकती हूं, मैं खुद को देख सकती हूं, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रही हूं और खुद को डिस्पाइस भी नहीं कर रही हूं, खुद को हेट्रेट का नजरिए से भी नहीं देख रही हूं, घिन भी नहीं आ रहा है खुद के प्रति, और ना ही खुद को मैं जस्टिफाई कर रही हूं जब बहुत बढ़िया किया, खा लिया तो क्या हुआ। ये दो जब नहीं रहेगा तब आंखें खुलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी जैपर है। ऊर्जा जो अटका हुआ रहता है, ये दो चीजों में रहता है अटका हुआ। ये जब खुल जाते हैं तब दिख जाता है चीजें, तब आंखें बड़े हो जाते हैं। मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी, इफ इट्स प्लीज ओके। मैम, प्लीज। मैंने एक्चुअली जो माधवी जी कह रही हैं, ये मैंने अनुभव किया है कि मुझे भी जब मैंने 2 महीने में सिर्फ फल पे रही, तो मुझे एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता था। पहली बार जब मैंने सलाद खाया, इतना एक सेटिस्फैक्शन आया शरीर में, जबकि मैंने बिना नमक के खाया था। थोड़ा खीरा, टमाटर, सलाद पत्ते और थोड़ा एवोकाडो डाला था। उसका जो सेशिएशन था वो बिल्कुल अलग था। और मैंने अपनी बहन को भी बोला कि टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड विद माय फूड। तो ये जो कह रही है मैंने अनुभव किया है। और कुछ समय बाद मैंने फिर कुछ मेरे ख्याल से सूप या कोई सब्जी भी ली थी, और उस टाइम भी बहुत एक वो भारीपन की, अब तृप्त हो गए, अब फुल हो गए, वो आया। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मैं अब जैसे मैं 3-4 दिन फल खाती हूँ, फिर कुछ सब्जी या कुछ एक मील में थोड़ा सा लेती हूँ। अब मुझे दिख रहा है, अब ये तीसरा महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे तृप्ति हो रही है। जैसे आज मुझे तीसरा दिन है कि मैंने सिर्फ फल ही खाए हैं, और मुझे कोई ऐसी वो वाली पुरानी फीलिंग नहीं आ रही कि अतृप्त हूं या सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना जो स्टमक का जो फिजिकल है, मतलब पहले हम उसमें डेंस फूड ही डाला करते थे, और हमारी ये सेंसेशन थी कि जब वो जाएगा तभी हम सेटिस्फाइड फील करेंगे। और अब हम उसमें लाइट फूड, ज्यादा वाटर वाला नेचुरल फूड डाल रहे हैं, तो उसमें एक अलग सेंसेशन आ रही है, और वो पुरानी कंडीशनिंग हम ढूंढ रहे हैं, वो पुरानी फीलिंग हम ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइम रहा है मेरे लिए, तो अब मुझे स्टमक भी दिक्कत नहीं दे रहा कि ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने खाया नहीं। तो मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई मीन इट्स वन पॉसिबिलिटी दैट आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप इस पे लगे रहें और बीच बीच में 2 दिन 3 दिन सिर्फ फ्रूट जब भी आपका मन करे करके देखें, अगर वो सहज लगता है आपको, तो शायद धीरे धीरे ट्रांजिशन, महीना 2 महीना, पता नहीं, जितना भी आपको समय लगे, सबका अलग अलग होता है, तो शायद ये तृप्ति आने लगेगी। क्योंकि अब मेरे को वो जो स्टेज था, उससे मुझे ऐसे ही नोटिस हुआ कि अब मुझे लगता है कि हाँ, भर गया पेट। मे बी इट्स यूज्ड टू ईटिंग मोर लाइटर, water rich, fiber rich food now and feeling full with that. पर वो जो फुलनेस है ना, एक वो हेवीनेस जो मैं पहले समझती थी कि सेशिएशन है, अब मुझे समझ आ गया कि वो सेशिएशन नहीं था, वो मेरा स्टमक प्रोटेस्ट कर रहा था कि जो तुमने मुझे भेजा है मुझसे पच नहीं रहा है। तो नाउ आई हैव सीन कि वो अलग है, वो भारीपन है, वो कंप्लेंट है मेरे पेट की, और जो अब है वो लाइटर है, बेटर है। आप खुद ही अपना, आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये जो लाइटर फीलिंग आती है और जो हैवी फीलिंग आती है कुक खाने के बाद। ट्रू या ये चल रहा है, जो सेलुलर मॉडिफिकेशन जो नंदिनी बात कर रही थी,
वो चल रहा है मैम, आपके साथ भी चल रहा है। जो आपका जो बायोलॉजिकल जो मॉडिफिकेशन है, जो पुरानी आदत पड़ा हुआ है हैवी खाने की, वो तो बदल भी रहा है, साथ साथ बदल रहा है। तो हो सके तो बिना सेंसेशन के चीजों को देखना स्टार्ट करो, उससे फिर ये चीज और भी एनहांस होगी और जल्दी ही खुद को दिख जाएगा, चीजें Thank you. सहज हो जाएंगी। Okay. Thank you, sir. Thank you. हाँ, थैंक यू। दो लोगों के हाथ रेस्ड है, उर्वशी जी और जीएस शेखावत। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगी। हाँ उर्वशी जी, एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। या हाय नंदिनी, हेलो। हाय कल्याण जी। हेलो हेलो। तो इतना सुंदर डिस्कशन है, बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं जब अकेली रहती हूँ तो मैं फिर भी इसके साथ चल पाती हूँ जो सब अभी यहाँ डिस्कस हो रहा है। बट द मोमेंट आई मीट माय पीयर ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, फिर अनकंट्रोल हो जाता है, फिर तो वहां से भागना पड़ता है मुझे। अनकंट्रोल क्यों दे रहे हैं इनका नाम? मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मैं कंट्रोल कैसे रह करने जाऊं। की कंट्रोल करने की इच्छा है, तभी किसी चीज को आप अनकंट्रोल बोल रहे हो ना। जी। तो पहले तो इसको देख लेते हैं ना, जे हमारे अंदर एक इच्छा काम कर रही है, जे हम शायद इसको कंट्रोल अगर कर ले। कंट्रोल करके कुछ भी अचीव नहीं होता है, एक वहम होता है बस। तो ये अकेले में तो हो जाता है, लेकिन जब सब साथ में होते हैं तब ऐसे लगता है कि मैं कुछ वंचित रह गई, कुछ नहीं, मतलब उसको सबने एंजॉय किया, उसको मैंने नहीं किया। बिना कंट्रोल का एक बार देखो ना। आपका जो सिचुएशनल जो चेंजेस जो है, वो एक कंडीशन बनता हुआ जो दिख रहा है, इसको आप देख पा रहे हो क्या आपको लग रहा है जे मेरे सिचुएशन ए में मैं कंट्रोल्ड हूं, सिचुएशन बी में मैं कंट्रोल्ड नहीं हूं? यानी कि सिचुएशन ए अगर मेरे जिंदगी में टिका रहे तो फिर मैं सही सही चलूंगी, कोट अनकोट। ऐसा लग रहा है अकेला रहने का, समझ लो सिचुएशन ए है, और दोस्तों के साथ जो सिचुएशन है ये सिचुएशन बी है। आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में जिंदगी को ले जा सकते हो अगर सिचुएशन ए टिका रहे आप, यस आई एग्री टू दैट। है ना। तो यानी कि आप एक शर्त लाने की कोशिश पे लगे हो, ये शर्त में अगर मैं चलूं तो फिर मैं सही चल पाऊंगी। ओके। कोई शर्त में अगर हम जी रहे हैं, वो शर्त प्राकृतिक नहीं हो सकता, वो एक शर्तीला जीवन हो जाएगा, प्राकृतिक जीवन शैली नहीं कहा जा सकता उसको। तो इसका मतलब मैं अगर फॉलो कर रही हूँ अकेले में और सोशली नहीं कर पा रही हूँ, तो आई हैव कुछ भी नहीं हो रहा, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा, आई हैव। मतलब आप एक शर्तीला जीवन जी रहे हो। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन एक अटैच किया ही हुआ है मैंने, हाँ, तो इट्स ऑफ नो यूज। ओके, इट्स ऑफ नो यूज। सो आप वो कंट्रोल, बिना कंट्रोल का अगर आप चीजों को देखना स्टार्ट करें, जब मैं बिना कंट्रोल का क्या हो जाएगा, आप बहुत खा लोगी या नहीं खाओगी शायद, हु नोज। पहले से अगर आप डिसाइड नहीं करते हो, जब पहले से ये भी डिसाइड करने का प्रस्ताव नहीं है जे आप दोस्तों के साथ जब जाओगे खाना जरूर, ओके, और ये भी प्रस्ताव नहीं है जे एकदम खाना नहीं। आपका तो खुद का समझ तो एक जारी है ना, आपका तो एक समझ है, एक अवेयरनेस, एक लेवल ऑफ अवेयरनेस लेके तो चल रहे हो। उस लेवल ऑफ अवेयरनेस जब ऑपरेट करेगी, बिना कंट्रोल की ऑपरेट करेगी, तभी तो वो अपना असलियत दिखाएगी, असलियत पे आएगी। समझ पा रहे हैं क्या इसको? मैं समझ पा रही हूँ, हाँ जी। और तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि
जिसको मैं ये मान रही हूँ कि मैं फॉलो कर रही हूँ अकेले में, वो एक्चुअली हाँ, फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं। फॉलो नहीं हो रहा, वो एक दबाव का एक कंडीशन क्रिएट करके एक एहसास पे जी रही हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। ओके। एंड सेकेंडली कि मुझे ऐसे लगता है अपने साथ, अब इतने टाइम से मैं इस पे चल रही हूँ कि मैं जब अपने आप को फ्री छोड़ने की कोशिश करूं कि ओके लेट मी बी फ्री विद कोशिश ना करें ना, कोशिश ना करें, कोशिश क्यों करेंगे? फ्री तो आपका सहज अवस्था है, उसको उसको उससे उसके रिलेटेड कुछ कोशिश क्यों जोड़ना है? अच्छा, आप मैं कोशिश क्यों करोगे? वो तो आपका सहज अवस्था है। क्योंकि मैंने इसको शुरू किया था ना एक बहुत बड़े उसके साथ किया था, जैसे जैसे अपना गला घोटना होता है ना, तो मैंने अपने आप को ऐसे बहुत टाइट करके किया था कि नहीं करना ही है ये, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन और वो प्रेशर बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को दिया, तो तब तो हो गया, काफी अच्छे समय से चलता रहा जितना मैंने अपने आप को फोर्स किया। पर जब मुझे लगा कि एक तो अंदर से भी आ रहा था कि नहीं कुछ और खाने का हो रहा है, या सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे शेक किया वो ये था कि मेरे पैरामीटर स्टिल दे वर नॉट ऑन द प्लेस वेयर आई वांटेड देम टू बी। तो उससे भी मैं थोड़ा हिल गया मन। और दूसरा ये कि वो अपने आप को ये तो डिप्राइव फील तो मैं करती रही पूरा टाइम। तो मुझे ये मैंने अब जब अपने आप को ऐसे सोचा कि अच्छा चलो थोड़ा एक ब्लैक कॉफी लेने से कुछ नहीं होगा, अच्छा चलो एक ब्लैक टी लेने से कुछ नहीं होगा, तो व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग अपॉन दीज थिंग्स, तो मैंने नोट किया कि बहुत ज्यादा हो गया। फिर ऐसे लगने लगा कि फिर तो छोले भटूरे भी खा ही लो। फिर उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है। तो ये सब होने लगा। फिर आई हैड टू पुट माई अपने आप को फिर से मैंने एकदम लगाम लगाई एकदम कस के। तो मैं ये नोट कर रही हूँ कि पैटर्न क्या है, जब तक मैं अपना बिल्कुल एकदम कस के लगाम लगा देती हूँ ना तब तो फिर भी फॉलो हो जाता है। और थोड़ा सा ढीला छोड़ूं या चल इट्स ओके लेट मी बी विद माय ईज, चलो कोई बात नहीं, तो फिर वो बिगड़ता जाता है। तो मैं अभी इस कॉन्वर्सेशन से ये समझ रही हूँ कि दैट मीन्स मैंने अभी तक इसको समझा ही नहीं है कि मैं हूँ किस रास्ते पर। सहजता जो है ना, इसको समझने की जरूरत है। सहजता कोई शर्त के जरिए आ नहीं सकती है। अगर कोई शर्त के वजह से आपका सहज अवस्था आया है, वो आपका एक वहम है, भ्रम है। समझ गई मैं आपकी बात। सहज अवस्था आई नहीं। Yeah, now I understand this. अभी भी लग रहा शायद, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। I'm here only with you. Yes. We are connected. Okay. Thank you so much. Yes, ma'am. हो गया उर्वशी जी? Yeah, I'm done. Thank you, Nandini. All right. GS शेखावत जी, उसके बाद नवीन। बहुत समय बाद नवीन आए। शेखावत जी आप थैंक यू मैम एंड थैंक यू कल्याण जी। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सम ऑफ द वेगन और नॉन वेजिटेरियन दे आर कंज्यूमिंग ग्रेन्स अनकुक्ड, so grains and millets with vegetable and cooked. Is it okay? It's also a cruelty. How? It's a cruelty towards your own body to begin with. Gaining health and then maintaining health, how it is a cruelty against body? You are asking that consuming grain, right? Yes. You're talking about consuming grain. Consuming grains then uncooked, मतलब soak किया उनको, sprout किया। हाँ जी। तो ये ग्रेन जो है प्राकृतिक ऑल वेजिटेबल्स, जैसे आपका लेडी फिंगर हो गया, ब्रिंजल हो गया, जो भी कुछ हो गया, दे आर अनकुक्ड फॉर्म में ले रहे हैं। अनकुक्ड ले रहे हैं आप? क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। भिंडी और बैंगन आप बिना कुकिंग के खाते हैं? बिना? यस, बिना कुकिंग कच्चा खाते हैं? कच्चा खाते हैं। बैंगन भी और ग्रेन्स को भी अनकुक्ड खाते हैं, जैसे स्प्राउट किया उसमें आपका सब कुछ, मतलब नहीं, बैंगन को तो स्प्राउट नहीं कर सकते ना। बैंगन तो बैंगन कच्चा खाते हैं,
जो आपके अच्छा खा लेते हैं ऐसे ही उठा के आप हाँ, जो बाइट कर सलाद लेते बनाते हैं ना, मिक्स सलाद बनाते हैं वेजिटेबल का, उसमें बैगन का। हाँ बैंगन भी है, आपका पत्ता गोभी है, टमाटर है। नहीं टमाटर तो समझ गई मैं, पर बैंगन और भिंडी आप कच्चा खाते हैं, ये मुझे भिंडी विश्वास खाते थोड़ा हैं। नहीं हो रहा है, हाँ क्योंकि भिंडी खाने में तो कैसा लगता है आपको खाने में? हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, कैसा लगता है आपको खाने में बैंगन और मैंने भिंडी? नहीं खाया, मेरे को आई नो कि मैं नहीं खाया। आपने नहीं खाया? यस, अच्छा, तो किसकी बात कर रहे हैं आप? अपनी बात करिए ना। मैं एक दो जो मेरे कलीग हैं वो खा नहीं, रहे आप हैं। अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, यहाँ पे हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो कुक जो है सलाद में वही खाया है आपका, जैसे टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है। आपका अनकुक प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि अनकुक फॉर्म में यदि हम कोई चीज लेते हैं तो वो नेचुरली डाइट का पार्ट है क्या? दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम एक खाने को ही कहते हैं कि एक मतलब अननेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, पर तो अननेचुरल फॉर्म में हम तो सभी चीजें यूज कर रहे हैं, क्लोथिंग है, और है, बिजली है, पानी है, जो नेचुरल फॉर्म में हम नहीं ले रहे। पानी का सोर्स भी हमारा नेचुरल नहीं है, तो खाली ईटिंग ही अननेचुरल है और चीजें अननेचुरल नहीं है क्या? ये दो क्वेश्चन है। Should I take it? हाँ प्लीज बोलिए कल्याण जी। हाँ, पहला जो आप बोल रहे हो, जो अनकुक्ड चीज जो स्वादिष्ट नहीं है, वो खाना नेचुरल है कि नहीं? यस। तो ये तो मैं रिपीट कर देता हूं, जो अनकुक्ड है पर स्वादिष्ट नहीं है, वो खाना नेचुरल है कि नहीं? उनके लिए स्वादिष्ट है, उनके लिए हम सिर्फ स्वादिष्ट आपकी बात स्पेशल। यस, नहीं, उनके लिए स्वादिष्ट है, बट जनरल ह्यूमन खा पाएंगे कि नहीं? वही इंसान जो बोल रहा है जो मेरे लिए स्वादिष्ट है, उसका अगर ऐसा कोई अवस्था है जो भूखा अवस्था है और सामने आम पड़ा हुआ है और बैंगन पड़ा हुआ है, वो क्या खाना पसंद करेगा और क्या खाएगा? इससे बात निकल के आ जाएगी कि उसका प्राकृतिक भोजन है क्या। जो चीजें स्वादिष्ट है और पर्याप्त मात्रा में हम खा सकते हैं, मॉडरेशन पे नहीं, मतलब थोड़ा खा लिया, ये भोजन नहीं हो सकता, वो मनोरंजन हो सकता है। मनोरंजन और भोजन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में हम खा सकते हैं, ऐसा हो और स्वादिष्ट हो। Sir, they are using routine lifestyle. So what? ये जो उससे क्या होता है? vegetables जैसे है आपका भिंडी है, बैंगन है, इनका जो सलाद है, they are using a routine. नहीं सर, ये उससे क्या मतलब है? हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राकृतिक भोजन क्या है। प्राकृतिक और वो नेचर उनके लिए नेचुरल है वो। आप खाएंगे क्या? आप खाएंगे क्या? मेरा ये सवाल है, सर, क्योंकि हम उनके दूसरे लिए लोगों नेचुरल है, ये सत्य नहीं है। सत्य है सबके लिए जो नेचुरल है। किसी एक ने किसी तरीके से कुछ अचीव कर लिया, उसको हम नहीं मान सकते हैं जो इंसानों के लिए वो लागू हो जाता है। नहीं समझ सकता वैसे। जनरल इंसान खा पाएंगे क्या, ये प्रश्न है। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे अपना जो वाटर है, पानी है, बिजली है, ये सब है, क्लोथिंग है, दे आर नॉट नेचुरल, वी आर यूजिंग देम। यस यस यस, ये तो है ही है। हम जितना नेचुरल यूज कर सके, जो भी आप चीजें बोल रहे हैं, उस पे भी यही लागू होता है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हर समय मकानों में बैठे हुए हैं, मकानों के अंदर बैठे हुए हैं, अप्राकृतिक है। उससे हमारा जो सूर्य रोशनी का जो मिलना होता है वो मिल नहीं पाता है। जो प्रॉपर ब्रीदिंग होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। ये अप्राकृतिक है ही है। जितना हम अगर ये अप्राकृतिक चीजें हट जाए तो चीजें बहुत हद तक और भी प्राकृतिक होना स्टार्ट कर दे।
तो प्रश्न क्या है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है सर, ये सारे भी अप्राकृतिक है। नहीं, मेरा प्रश्न तो क्या है? जब खाली एक हम खाने को ही नेचुरल मानते हैं और चीजों को जो अननेचुरल यूज कर रहे हैं, तो खाने पर अपना इतना स्ट्रेस क्योंकि भाई वही नेचुरल होना चाहिए और सब कुछ हम अननेचुरल यूज कर ले। ने एक बीच में एक डिस्कशन हुआ सर, खाना ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लाइट्स वगैरह उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है हमारे ऊर्जा के नजरिया से। वो जो लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच, आप शुरू से थे सर? नहीं सर, मैं 10 मिनट बाद में ज्वाइन किया था, 10-15 मिनट बाद। अच्छा, शुरू में एक डिस्कशन हुई थी 15 मिनट किया था। जहां पर ये बात हम लोग डिस्कस किए थे, जो खाने पे इतना ज्यादा जोर क्यों। हाँ, तो उसमें खाना और सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है मन पे। उस वजह से इसका महत्व तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है जो बाकी चीजें प्राकृतिक हो गया, वो भी अप्राकृतिक है। अगर अप्राकृतिक है तो अप्राकृतिक है, वो अगर खत्म हो जाए तो शायद प्राकृतिक जीवन लौट के आ जाए। वो खत्म होने के बजाय तो सर बढ़ता जा रहा है वो, तो मतलब इन चीजों का, जैसे हम मीडिया, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अपने क्लोथिंग यूज कर रहे हैं, अपने हाउसिंग यूज कर रहे हैं, पानी का तो सही नहीं नेचुरली, आदमी चाह के भी नहीं कर सकता कि भाई मैं नेचुरल पानी पीऊं। हाँ, अगर ये हमें समझ आ जाए जो ये सारे अननेचुरल चीजें हैं, शायद हम छोड़ दें उसको। हम जब तक उस पे उसको मान के चल रहे हैं जो प्राकृतिक जैसा ही है, तो टिके हुए हैं। अगर देखना जारी हो, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सिर्फ खाने वाली चीज नहीं है, बट ये जो देखने का कार्यक्रम है, ये हर एक मोमेंट में होना चाहिए। माइंडफुलनेस इज स्टेट ऑफ लाइफ। ये ऐसा नहीं है जो जीवन में दिन के 2 घंटे माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस कर लिए हम, इससे कोई जीवन की समृद्धि नहीं आ सकती, क्वालिटी एनहांस नहीं हो सकती। तो अगर ये दिख जाए, जितने भी अप्राकृतिक चीजें जुड़ा हुआ है, ये अगर सही से दिख जाए हमें, तो वो छूट भी जाएगा। नहीं सर, छूट, जैसे even we are using glasses, we know it is artificial, naturally, but they are essentially, तो छूट कैसे सकते हैं? जो छूट नहीं सकते हैं उसके बारे में देखा जाएगा, बट छूटने का प्रावधान तो बन सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी नवीन, आप पूछिए। थैंक एक सेकेंड, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। तो कल्याण जी, मैं 2 अक्टूबर से फ्रूट डाइट पर हूँ। ओके सर। और मैंने आज 2 दिसंबर हो गया है, 3 महीना हो गया है। 2 जनवरी, सॉरी 2 जनवरी, तो कितना हो गया, 3 महीने हुआ। यस या सो बीच में शायद 1 या 2 बारी मेरे को कुछ इच्छा की हुई होगी कि आई शुड गो फॉर ए कुक फूड, बट जैसे ही मैं कुक फूड की तरफ गया, मैं वापस आ गया। तो ना मैंने सैलेड खाया है, ना मैंने कुक फूड खाया है। ठीक है। तो मतलब मैं इतनी बातें सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं ये कैसे कर पाया कि 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे कर पाया। आपको तो दिख गया हो? क्या मैं अननेचुरल हूं या मेरा ठीक चल रहा है? नहीं, आपको दिख गया है, तभी नहीं कर पाए, इसका एक पॉसिबिलिटी है। पर इसमें एक प्रश्न रह भी जाता है, जो आप जब देख रहे हो जो 90% लोग नहीं कर पाए हैं, पर आप कर पाए हो, तो इसका एक गर्व आपके अंदर महसूस हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है। और मेरी मतलब जिसको भी मैं बोलता हूँ, मैं फॉरेन कंट्री भी हो आया इस बीच में, और वहां भी जाके मैंने ये सब कुछ ही फॉलो किया। तो मतलब मुझे तो अपने ऊपर काफी प्राउड है। लेकिन सर, ये प्राइड जो है, प्राइड सहज अवस्था नहीं है। ये सहज अवस्था नहीं है।
ये अगर हमें दिख जाए तो फिर और भी सहज हो जाओ। नहीं, प्राइड इन द सेंस, आपने मुझसे पूछा प्राउड हो कि नहीं, तो मतलब मैं अपने किसी को ऐसे बताता नहीं हूँ कि मैं फ्रूट्स पर हूँ, मैं ये हूँ, आई एम ओके, एज नहीं, लॉन्ग इंटरनली आर यू सेंसिंग अ प्राइड? नॉट रियली। हाँ, लेकिन जब लोग बात करते हैं तब मुझे महसूस होता है, हाँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब जैसे वहां हम गए थे, we all are unique, we all are unique. Consideration of speciality is imagination. मतलब मुझे अब कुछ कुक फूड देखने का भी मन नहीं करता है। बढ़िया पॉसिबिलिटी है जो आपको दिख गया है उसका असलियत, इसका एक पॉसिबिलिटी है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बढ़िया सर। ये मेरा अननेचुरल तो नहीं है ना, नेचुरली है ना। ऑब्वियसली आप अगर नेचुरल चीजें देखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये नेचुरल तो है ही है। ठीक है जी, पर हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। कल्याण जी, अब आप बताइए कि कोई आपके साथ जुड़ना चाहें या और कुछ कैसे अपना ये जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं, कुछ आपको कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपसे और सीख सकते हैं? जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं पहला बात है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी? अगर आप चैट बॉक्स में भी डाल दें और बोल भी दें। हाँ, ये saisolution.info जो पीछे लिखा है यही है बेस्ट? हाँ, ये तो वेबसाइट है, यहाँ पर ये मिल डाल जाएगा। देंगे यहाँ पे। हाँ, ठीक और है। बिनल अभी कुछ शेयर किया है चैट बॉक्स में। अच्छा, ठीक है। तो उसमें कुछ ये है, फेसबुक पेज, अपकमिंग इवेंट वगैरह उसमें आ जाता है। फेसबुक पेज का लिंक डाली है बिनल। अच्छा, तो आप जो चैट में है उससे कॉपी कर सकते हैं। एक बार बोल भी दीजिए ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए। फेसबुक में अब साई सोल्यूशन PSYSOLUTION सर्च कर सकते हैं तो पेज और प्रोफाइल दोनों दिख जाएगा। तो यस, ठीक है। एक सवाल और आ रहा है किसी से, मैं वेट कर रही हूँ, अगर वो लिख दें। आपके पास समय है क्या? क्योंकि अभी 8:45। हाँ जी प्लीज। कबीर, आपका अगर कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वो चले गए। शेखावत जी और नवीन जी, ये नहीं, दोनों उनका तो लोअर नहीं हो गया ना? मैं कर दे। हाँ, हो गया वो मैं लोअर कर देती हूँ। हाँ, कबीर है, कबीर का एक हाथ आया अभी। अच्छा, कबीर का क्वेश्चन क्या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? 1 सेकंड, या फिर आप वीडियो पे आ सकते हैं तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। कबीर सोहनी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो वीडियो पे आ जाइए। अच्छा, नहीं, इट्स लेडी। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। ओ मिसेस सोनी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए मिसेस सोनी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। एक वो फोन बटन होगा, उस पे दबाइए। नहीं तो आप अपना प्रश्न लिख भी सकती हैं चैट बॉक्स में और मैं पूछ सकती हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है अनम्यूट करना। एक लाल रंग का माइक होगा, उस पे दबाएंगी तो अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा। Okay, I'm just going to remove. If everybody can open their video, अगर सब अपना वीडियो खोल लें तो हम एक बार थोड़ा सा क्लोजिंग कर देंगे। और मैं सबको अनम्यूट करने लगी हूँ। अगर किसी को कुछ भी कहना है, जो भी आज सीखा, इट विल बी वेरी नाइस अगर आप कहें कि एक चीज आपको क्या अच्छी लगी आज कौन I think I really liked कि
एफर्टलेस कैसे होना थोड़ी सी समझ आई है। So वो that's आपको good. अच्छा लगा। Yes. और बताइए, बहुत सारे लोग हैं। वंडरफुल टू सी सो मेनी फेसेस। Patience and calmness of the Kalyanji, I liked it. कामनेस, नाइस। और कुछ? इतने 2 घंटे से आप बैठे हुए हैं, 2.25 नहीं, 2.25 घंटे से। क्या आपको आज इंटरेस्टिंग लगा? और कोई शेयर करना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो हाथ हिलाना, मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। इतनी सारी चीजें थी नंदिनी की, रिकैप करना मेरे माइंड में मुझे डिफिकल्ट हो रहा है। नेचुरल चीजों को आइडेंटिफाई करना, और ऑब्वियसली अगर आप सहजता से नहीं कर रहे हैं और डिसिप्लिन करके करना चाह रहे हैं तो ये यूजलेस है, बिकॉज वो एंड रिजल्ट आएगा नहीं, या जो भी आप मतलब नॉट रिजल्ट रियली, बट दैट्स नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग एंड हम लोगों में एक है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, हम पुश करना चाहते हैं। तो मुझे भी ये समझ में आया कि उसमें हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं एक तरह का। राइट, बिल्कुल। और कुछ बोल रही थी आप? भूल गई। सॉरी। I'll let others talk. सोनल, अमन, मायावी। नंदिनी जी आप ही रिकैप कर दीजिए थोड़ा शॉर्टकट में। नहीं, मैं क्यों रिकैप करूं? आप सब करो, मेहनत तो मैंने कर ली, अब आप करो। आप अपने अपने नजरिए से करो ना। मैंने मिस कर दिया। मैं कुछ बोलूं? अमन बोल रही हैं, उसके बाद आप। मैम सोनू। हाँ, पहले अमन फिर सोनू। मैं कह रही हूँ मैंने मिस कर दिया इतना बढ़िया सेशन, मैं लेट हो गई, मुझे कोई पता ही बात नहीं, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे डाल देंगे। जी जी, मैं जरूर सुनूंगी। सोनू जी बोलिए। जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सोनू जी। एक बार आप म्यूट कर देंगे तो फिर अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप बोलिए। हेलो मैम, हेलो सर। मैम आई रियली लाइक कि आपने जो एग्जांपल दिया कि हीटर का रूम में, और सर ने जो एक्सप्लेन किया कि ठंड, एक तो हीटर बंद हो गया है तो वो ठंड लग रही है, लेकिन हम बाद में पूछते हैं कि कैसा हीटर है, क्या है। एवरी टाइम हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि सर्वेंट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये ऐसा होना चाहिए। हम इतनी ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, तो ये सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ठीक है, वो सब जो भी हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है। वी हैव टू स्टे काम, जो भी सिचुएशन है उसमें हमें काम रहना है, और हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं और जैसा होना है वो कर लेना चाहिए। तो मैम आई रियली लाइक दिस कि वो बहुत अच्छे से समझ में आया, वो एग्जाम्पल से जो आपने दिया ना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बीनल यहाँ पे है क्या? बीनल, आप बताएंगी कि अगला प्रोग्राम भी एक होने वाला है ना, उसके बारे में आप जानकारी दे सकती हैं सबको। तो मैं बता रही थी शुरुआत में कि मैंने 2 दिन का बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम अटेंड किया, जिससे मुझे काफी क्लैरिटी मिली। उसके बाद अंजू बंसल जी। बीनल जी बताइए। वन सेक, आई हैव टू आस्क यू टू अनम्यूट। तो हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी होते हैं और इन पर्सन वर्कशॉप्स होते हैं, दोनों भी होते हैं। तो अभी एक जो इंग्लिश में एक ऑनलाइन जो आ रहा है वो 11 और 12 फरवरी को है, और कोलकाता में एक बांग्ला में वर्कशॉप हो रहा है जो इन पर्सन वर्कशॉप है। तो जो वहाँ के है और जो जाना चाहता है और बांग्ला से परिचित है तो वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद एक मुंबई में भी हमारा वर्कशॉप प्लान्ड है फरवरी के 21, 22, 23 और 25, 26 तक। तो वहाँ भी एक ऑप्शन है कि आप एक्चुअली आके, और रेसिडेंशियल का भी ऑप्शन है, इन पर्सन का भी ऑप्शन है, वो भी अवेल कर सकते हैं। तो फेसबुक पे और भी हमारे डायलॉग्स और एक डायनामिक डायलॉग्स करके सीरीज है,
तो आप हमारे जो यहाँ पे लिंक भेजा है वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे उसके। और इंक्वायरी सेशंस, बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, यहाँ पे ऐसा ये डेस्टिनेशन नहीं है कि अभी समझ में सब आ गया, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी। So we do have these inquiry sessions where we keep, questioning stuff. So yeah, They're most welcome. open sessions. They are free and they happen once a week or something like that. We have been quite erratic in our schedule. हाँ, मतलब वो अनाउंस हो जाता है फेसबुक ग्रुप पे। Yes, हाँ, yes. तो और कोई 3-4 दिन तरीका है पहले। साई सोल्यूशन पे भी इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ये सब जो आप बता रही हैं, अगर कोई फेसबुक पे ना हो तो? तो वेबसाइट तो है ही, और वर्कशॉप्स का इंफॉर्मेशन मिल जाता है साइट जी। पे। ठीक है। ओके, आप कुछ बोलना चाह रही थी अंजू जी? हाँ, बोलिए। मुझे ना जैसे हर चीज फ्रूट से कनेक्ट करके ऐसे समझ में आ रही है कि जो कल्याण भाई साहब कहते हैं ना कि देखना जो अगर आ जाएगा ना, तो जैसे फ्रूट खाने से हमारी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जिसे हम डिजीज समझते थे, वो अब जैसे माइंडसेट चेंज हो गया कि अब डिजीज कुछ है ही नहीं। तो अगर देखने वाला कुछ ये प्रॉपर आ जाए ना हमें देखते देखते, तो लाइफ में प्रॉब्लम और क्रेविंग भी एक प्रॉब्लम ही है अभी हमारे लिए, जैसे तो वो सारा सब खत्म हो जाएगा। जैसे डिजीज खत्म हो गई बॉडी में से, ऐसे ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बट ये देखने वाला कभी हो रहा है, कभी नहीं हो पा रहा। प्रैक्टिस इसे कर ही रहे हैं जब से सुन रहे हैं, तो पता नहीं अब कहाँ लूप है इसमें। इसके लिए हम एक और डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, थैंक यू, है ना, क्योंकि आपका बहुत मुझे थैंक लगता यू है कि कि आपने आज देखना का एक डिस्कशन रखा। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये देखना एक यात्रा है, और हाँ, हम सब हाँ। उसमें साथ साथ चल रहे हैं। हम्म, तो कभी किसी को कुछ दिखता है तो बोलता है वो देखो वो कितना सुंदर लग रहा है, किसी और को कुछ दिखता है तो बोलो देखो। पर आई थिंक ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मोमेंट में मतलब सब कुछ हो जाएगा। ये हम साथ साथ एक यात्रा पे चल रहे हैं, साथ साथ देखते जाएंगे। बस देखना ना छोड़े, ये अगर हमारा रहे कि हम आंखें खुली ही रखें और अपनी चेतना को ओपन ही रखें, खुला ही रखें। मुझे तो यही समझ आया कि यही करना है, चलते जाना है और अपना आंखें और दिमाग को खुले रखना है, बिना किसी चीज को से अटैच हुए कि हमें ऐसा ही चाहिए या हमें वैसा ही चाहिए। शायद ये खुला हुआ है ही है, खाली बंद करना है। हाँ, ठीक है। और किसी का अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम फिर ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज अपना टाइम देने के लिए, यहाँ पे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, फिर मिलेंगे। Thank you everyone so much. Kalyan sir and Nandini, thank you so much. थैंक यू। थैंक यू नंदिनी जी, कल्याण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।